Hello friends, and in this series of geography questions, we are taking up first 50 questions, and our goal is again like in the previous series if you have watched, then to go with the idea that how easily and how correctly we can identify our concepts and also how we can self-evaluate. तो exercise जो है इस तरीके से है that where it is not just merely by hook or crook you are solving it, you are going by the concept, you are going by the idea, and at the same time you are learning and you are also trying to polish your weak concepts. For example, temperature and water are the most ecologically relevant environmental factors. In this context, consider the following statements. Stenothermal organisms can tolerate and thrive in wide range of temperatures. Pravesh? Sir, I think they are in a narrow range of temperature. First would be incorrect. हाँ जी And euryhaline organisms are restricted to a narrow range of salinity. हो सकता है सर। सर ये भी शायद उल्टा होना चाहिए। Second statement you are saying correct, Mansi is saying wrong, Pravesh is saying correct. And first statement Pravesh is saying wrong. First is Karna? wrong, second is correct. So both of them are not correct. हाँ जी Second statement is also wrong because it is also broad, euryhaline. सो आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी लेकिन बहुत कम, लेकिन कॉन्सेप्ट जानने के लिए अच्छा है ये कि व्हाट आर साइनोथर्मल एनिमल, व्हाट आर यूरोहेनल ऑर्गेनिज्म, दैट्स ऑल यू कैन लर्न. So basically rather than geography we can call it environment. Hunting of wild animals in India, chief wild warden can permit to hunt the wild animal that has become dangerous for human life. Mansi? फॉल्स फॉल्स होना चाहिए सर, क्योंकि हंटिंग फिर भी आप कैसे अलाउ कर सकते हो, डेंजरस फॉर ह्यूमन सर लाइफ। ट्रू है correct सर, सत्य? करेक्ट ट्रू है है सर। करेक्ट है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होते हैं दैट हैज permission- बिकम सर, एंटिसिपेशन हाँ जी। नहीं यहाँ पर नहीं है, दैट हैज बिकम मैन ईटर को तो- आप नहीं hunt कर सकते डेंजरस भी होगे तो आप फिर भी उनको हंटिंग के लिए कैसे अलाउ कर सकते हो? सर ये जो बात हो रही है ना सर की जैसे कि हंट, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हंट कर रही है इसको, कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता है। और जैसे हम बात करते हैं पोल्ट्री फार्म्स की, तो फ्लू आ जाता है, एवियन फ्लू आ जाता है तो करते यहाँ हैं प्रवेश calling वाइल्ड करते एनिमल है यहाँ पर। अरे हाँ। वाइल्ड लाइफ वार्डन है, फ्लू कैसे है इसका लेना देना? नील गाय का हुआ था सर बिहार में, तो कर सकते आने हैं। गाय है, उसके बाद मंकीज का हो सकता है. The killing of wild animal in self-defense is not considered as an offense. ये फॉल्स है सर, इट इज एन ऑफेंस। हाँ सर, ये हो सकता है। Wildlife False. animal killed or wounded in defense of a person is considered the property of government. ये तो ट्रू है सर। वरना Sir, all three are correct. चलिए, सेकंड वाले second is also correct. करेक्ट। Yes, sir. अगर मैन ईटर टाइगर है, आपने गोली मार दी, इट इज नॉट एन ऑफेंस. एलेन्स रूल. आंचल, दिव्या, मानसी, सर। मैम in the ruling climate Write in the chat box. mammals बात ही खत्म. Never And- stop when the answer comes to your mind. Always just write and make your mind free. Never keep that hesitation. Anyone with the correct answer means apart from Ashik? मानसी बोलो जल्दी. तो इसके बारे में आइडिया तो नहीं है, बट वही गेस करूंगी तो ए और बी के बीच में ही आई थिंक ब्लबर ऑफ फैट, तो सर ए के साथ ही जाऊंगी, एलेन्स रूल। क्यों? तो बिकॉज बी वाला इतना सूटेबल है नहीं, और फोर्थ वाला जो मैमल्स फ्रॉम ट्रॉपिकल क्लाइमेट दे हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन ऑन एवरेज, तो रूल एलेन्स रूल इसमें कैसे फिट होगा? एक रूल सर है। रूल है सर, प्रेरणा बताई थी दूसरे पोजीशन में, एक बार डिस्कस किए थे एनिमल मैमल के हिसाब से। Very good. Next question, please. Yeah. Pravesh, question number 4. Photosynthetically active radiation. Total solar radiation, more than 70% of the total solar radiation is photosynthetically active radiation. बोलो प्रवेश. पहला 3 हो सकता है सर। Plants can on Earth capture only 2 to 10% of the total photosynthetically active radiation.
मानसी, सेकंड स्टेटमेंट. So it should be true. करुणा. Sir, in the first one, जो incident solar radiation it is less than 50%. The second statement is correct. चलिए नेक्स्ट. प्रवेश, फर्स्ट स्टेटमेंट. लिमिनेटिक जोन इज वेल lit and is dominated by plankton. मानसी, फर्स्ट स्टेटमेंट. So it is true. सेकंड स्टेटमेंट प्रवेश. तो फंडा जोन इज डीप वाटर. हाँ ट्रू है सर, ये सर ट्रू है, पहला भी ट्रू है. ओके. करुणा. So both are correct. चलो आगे चलो. Which of the following reasons account for lesser biodiversity in temperate regions as compared to the tropicals of the world? Ashik, first statement. ट्रू हो सकता है सर. फ्रीक्वेंट कौन सा? ग्लेशिएशन फर्स्ट वाला. प्रवेश, second statement. Temperate environments are less seasonal and stable than promoting specialization. नहीं सर, ये नहीं हो सकता. Third statement, Mansi. There is more solar energy available in the tropics, which ये तो contributes to higher सही है. productivity. So true होगा sir. ये तो ट्रू है थर्ड वाला. Karuna. So Divya. only third one is correct. First and second are false. फर्स्ट में जो है उल्टा होगा ना. हाँ, temperate पे ज्यादा glaciers सेकंड में भी impact. नहीं होगा, ये लिखा हुआ more टेम्परेट seasonal. रिमेन अनडिस्टर्ब्ड, तो ये गलत है. हाँ, हाँ. अनडिस्टर्ब्ड. करुणा. So ज्यादा explanation दी नहीं हुई है इसमें. सेकंड स्टेटमेंट में ये सर स्टेबल नहीं more होता. तो हाँ, इसमें उल्टा. tropical environment होगा. नीश को temperate की बढ़ाने जगह. के लेस सीजनल. चलिए आगे. पैरासिटिज्म. फर्स्ट स्टेटमेंट मानसी, बी क्विक. Parasites that feed on the external surface of the host are called endoparasites. Endoparasites नहीं होना चाहिए. Should be false. एक्टोपैरासाइट, सेकंड स्टेटमेंट प्रवेश. थर्ड स्टेटमेंट करुणा. ओ एंड आंचल. सर अकॉर्डिंग टू मी सेकंड इज ट्रू. नहीं यार, एक्टोपैरासाइट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट्स. रॉन्ग होगा ये मेरे हिसाब से. थर्ड स्टेटमेंट दिव्या, आंचल. True sir. कौन सा? Third. So parasite तो feed करेंगे ही ना. Parasite does not feed on the organism, ये तो गलत होना चाहिए. Parasite तो feed करेंगे करुणा. दूसरे organism पे हमेशा. So सर only सेकंड third वाला. statement- हाँ. only third is correct. करेक्ट. कैसे बताओ. हाँ तो सर ऑप्शन के हिसाब से. ब्रूड है ना, ब्रूड. आप ब्रूड वर्ड पे जाओ ना. तो जो फर्स्ट वन है उसमें एंडोपैरासाइट्स नहीं बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं. उल्टा दे रखा है. हाँ सही बात है. नहीं, थर्ड स्टेटमेंट के लिए करुणा बताओ. सर थर्ड में इसमें यही लिखा हुआ है, ब्रूड parasitism in birds, the parasitic species does not obtain food. ओके आशिक, आप कुछ बोल रहे थे. हाँ सर मैं सेकंड वाला बात कर रहा था कि लिव इनसाइड है और पहला वाला तो एंडो होना चाहिए. थर्ड 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 वाला सर डज नॉट फीड ऑन द ऑर्गेनिज्म. ब्रूड पैरासिटिक. तो 1 और 2 से Brood निकाला है. था आंसर इसमें. अच्छा, 1 और 2 से निकाला. 2 वी नहीं. लुक इनटू इट. ऑपरेशन नार्कोस, मानसी. So operation cross border drug करेक्ट होना trade, चाहिए. drive for combating cultivation of drugs in the country, month-long pioneer drive against smuggling of narcotics through real awareness on the drug abuse amongst the youth, Operation Narcos. So I will go with A. Sir, I'll go with A. Restricting cross-border drug trade. Anyone with a different answer? सर आई विल गो विद सी. You'll go with जी. जी. on rails, ट्रेन में. ये ज्यादा स्पेसिफिक है. बाकी सब
जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है सर। ये बात भी 1 सही month है। लॉन्ग कैंपेन, पैन इंडिया ड्राइव रेल के थ्रू। करुणा, लेट्स सी। So it is only written option C is correct. 1, 2, and 4 only. सर एन भी दिख रहा है, आर से रेस दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो उसमें 1, 2 एंड 4 कैसे बोल दिया? करुणा, क्वेश्चन नंबर 8। नहीं सर, 1 to 4 का है, ABCD तो है। मुझे तो क्यों बोल, करुणा बोल रही है ना 1 2 4 नंबर्स तो है ही नहीं। कहाँ करुणा गई So व्हाट? C is correct. So C is correct. ये भी दिव्या की बहन है ना। चलो आगे। Which of the following processes are involved in decomposition? कर दिव्या, तुम बोलो। आंचल। ए एक क्यों, आप 1 बताओ ना। 4 1 4 1 4। तो 3 का नहीं पता, शायद 2 हो सकता है। अच्छा, 3 का आपको पता नहीं, 2 हो सकता है। 1 2 4 आप बोल रहे हो। फ्रेगमेंटेशन, 1 और 4 मिनरलाइजेशन, तो है, इन दो का कंफर्म नहीं है हमें। 1 और 4 कैटाबॉलिज्म। हाँ, कैटाबॉलिज्म क्यों नहीं हो सकता? एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, दो तरह के रिएक्शन होते हैं। ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन में बाद का जो है सर वो डिकम्पोजिशन होता है। मतलब ह्यूमिफिकेशन जब बन जाता है ह्यूमस, हम्म, वो डिकम्पोज होता हम्म, है ना उसके बाद। तो ह्यूमिफिकेशन पहला प्रोसेस है, तो फ्रैगमेंटेशन के बाद होगा, ह्यूमिफिकेशन के बाद होगा, और फिर मेंटलाइजेशन के ह्यूमिफिकेशन के बाद होगा उसके। तो 1 to 4 होना चाहिए। 1 to 4 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। आंचल। All सर of 1 them to are 4 का आंसर है सर इसका। ह्यूमिफिकेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। लेकिन उसके बाद ब्रेक डाउन होता है ना, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते ऐसा हैं नहीं है, ह्यूमिफिकेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। बाद में क्यों होगा? ये तो प्रोसेस है। ह्यूमस का जो ह्यूमस बोलते हैं कि सॉइल में ऐड हो जाता है, तो वो डिकम्पोज होने के बाद ही तो बनता है ह्यूमस। डिकम्पोजिशन के साथ ही हो रहा है वो, और जब डिकम्पोजिशन पूरा हो गया तो ह्यूमस बन गया। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 10। आंचल, उसके बाद दिव्या, ये तो उसके बाद सचिन। 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। दिव्या, यस सर। बोलो जल्दी। पढ़ तो पाई नहीं, अब जल्दी जल्दी बोल रहा है। आधा आंसर पढ़ते ही कोई भी आंसर बता देगा, चिंकारा और ब्लैक बक पढ़ते ही। प्रवेश, सर बिश्नोई। पक्का? हाँ सर। ओके, चलिए। मानसिक, क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड The first National Wildlife Action Plan was adopted in the provisions of National Forest Policy 1988. नेशनल वाइल्ड, सो गलत होना चाहिए, इससे पहले हो सकता है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट कौशिक। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज हेडेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बना हुआ है, तो हो सकता है सर, सेकंड सही कौशिक, हो सकता वाला हो गया, डन फ्रॉम योर साइड। है। यस सर, ओके, सेकंड क्वेश्चन सही नंबर होना 11। सर दोनों ही इनकरेक्ट है स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट में 1983 में अडॉप्ट हुआ था, एंड सेकंड में इट इज ट्रिगर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। चाहिए। दिव्या, sacred grew and states, Divya and Achal. And question number 12, Parvesh, be ready. Look into 11 first and then go to 12. Mansi, be ready with question number 15. Go to 12 and go to 15. बोलो भाई, 12 जल्दी। सर इसमें पहला नहीं होगा, 2 and 3 करेक्ट। 12th में पहला आसाम नहीं है। नहीं सर, खान नहीं है आसाम में। खान कहाँ है? सर आसाम मतलब नॉर्थ ईस्ट में नहीं है सर खान। करुणा,
The first and third correct है. Second में it is not Tamil Nadu, it is Kerala. देख ले भाई अब तो हमें ऐसे नहीं चाहिए। आपने कोशिश तो ठीक की, लेकिन कई बार मॉर्फोलॉजिकली लगता है सही होगा लेकिन होता नहीं है। तो थान असम में ही है, काबूस कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट, Sir, in Kerala. केरला, एंड देवराकाडू तमिलनाडु और कर्नाटका। तो ऐसे तो यूपीएससी नहीं करता, तमिलनाडु कर्नाटक इतना पास पास नहीं करेगा वो थान को गलत देगा, बिल्कुल दूर का। क्वेश्चन नंबर 13 किसको बोलना था? XC2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी में आ चुका है ये। सर 1 and 3 आंसर है इसका। मानसी 1 and 3 क्यों है? सेकंड क्यों नहीं होगा मानसी? सो क्योंकि इन साइटू हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व वहीं जो हैबिटेट है वहीं पे कंजर्वेशन करते हैं, तो दैट इज इट विल नॉट बी एक्स साइटू। हाँ मतलब वो आर्टिफिशियल नहीं होगा, नेचुरल है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 14 आंचल एंड दिव्या। पहले बता रहा है कन्फर्मर्स कौन है, आप नोट कर सकते हो, नहीं पता तो। आंचल, दिव्या, प्रवेश। 1 and 2. 1 and 2 हमिंग बर्ड और श्रीव्स। क्या होता है श्रीव्स दिव्या? चूज नहीं करता सर। हमिंग बर्ड क्या है? प्रवेश। सर आई विल गो विद डी 1 2 3। करुणा। So the answer is first and second only. वाई? यानी तो ठीक है क्योंकि दिव्या। लॉजिक ये हो सकता है क्योंकि वेरिएशंस बोल रहा है एक्सटर्नल टेम्परेचर में, तो पिकॉक जो हैबिटेट में मिलते हैं वहां पे इतना टेम्परेचर वेरिएशंस होते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 प्लीज। So पूछा environmental impact of chemicals used in day-to-day life. Consider the following. So alum is a non-toxic liquid that is commonly used in water treatment plants to clarify drinking water. So true. Second, hydrogen peroxide is a more environmentally friendly chemical for bleaching of the clothes than chlorine gas. हाँ। So comparison में बोल रहे तो it can be true sir, तो मैं दोनों true mark करूंगी। ओके प्रवेश, क्या बोलते हैं आप 15 नंबर के लिए? सर पहला करेक्ट मारूंगा, दूसरा फॉल्स मारूंगा सर। करुणा। So both are correct. यस। 16 नंबर 16 मानसी, उसके बाद आंचल बताओ। The context of interspecific interactions among various species, in which of the following cases only one organism is benefited? So competition में तो सर competition में दोनों का होना चाहिए मेरे हिसाब से। Parasitic कंपटीशन क्या? होगा तो दोनों का फायदा होगा। यूपीएससी में सारे compete करते हैं, किसका फायदा होता है? इसमें बोल रहा ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, तो दोनों का कुछ ना कुछ तो होगा ही फायदा, थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो सकता है। सर नहीं, सो आई कंपटीशन विल एलिमिनेट। सर कंपटीशन ओनली वन बेनिफिट्स। सो फिर आई गो विद सर किसी का ठीक है फायदा नहीं, competition। कंपटीशन दोनों घाटा है, मतलब ओवरऑल। ठीक है पैरासिटम होगा, पैरासाइट्स ओनली वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स एंड प्रेडेशन, सो नॉट श्योर इसमें। क्यों? प्रेडिशन में भी एक ही अलग लायन हिरन एक ये दूसरे को प्लस नुकसान माइनस करेगा। हो पैरासिटिज्म में भी एक ही का होगा। अच्छा पैरासिटिज्म में तो एक होगा 2 3, आंचल। सो 2 3 4। करुणा। So 2, 3 and 4 are correct. चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 मानसी, आंचल। क्वेश्चन नंबर Statue of 18 Peace dedicated to him has been unveiled in Kashmir.
सर ए होना चाहिए। बी। शंकराचार्य कैसे हुआ? शंकराचार्य। वशिष्ठ अद्वैतवाद, मानसी। शंकराचार्य ने तो अद्वैतवाद बोला, और चैतन्य महाप्रभु ने द्वैत अद्वैत नहीं, द्वैत अद्वैत नहीं, वो अपना सर चैतन्य महाप्रभु का, हाँ? सर, चैतन्य महाप्रभु डिफरेंट हो गए। वो आप बात कर रहे हैं द्वैत, द्वैत का बात कर रहे हैं वल्लभाचार्य। हाँ, ये वो तो वशिष्ठ है, है, लेकिन क्वालिफाइड चैतन्य वेदांत। महाप्रभु ने भी तो बोला यार। आई एम नॉट गेटिंग इट करेक्ट राइट नाउ, आई एम नॉट गेटिंग इट, आई जस्ट गेट बैक। मेरे को याद आएगा, मेरे माइंड में चल रहा है, एग्जाम में आ भी चुका है, मेंस में आ चुका है चैतन्य महाप्रभु का। आई जस्ट गेट बैक। सम पोल्यूटेंट्स आर डिवाइडेड इनटू, चलिए औशिक, क्वेश्चन नंबर 18। जब क्वांटिटेटिव होता है कि खुद में वो पॉल्यूटेंट नहीं है लेकिन क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो वो कहलाएंगे, तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड है और डाइऑक्साइड है। क्वालिटेटिव होता है खुद में ही पॉल्यूटेंट है, थोड़ा सा चाहे ज़्यादा, तो 1 और 3 होगा इसका। क्वालिटेटिव बी, है ये। खुद में ही पॉल्यूटेंट है, क्वांटिटी से मतलब कम रहे या ज़्यादा रहे, पॉल्यूटेंट है। क्या दोबारा बोलिए, समझ आया सबको? नहीं सर, जब क्वालिटेटिव क्वांटिटी पॉल्यूट सर, नाइट्रोजन कंपोजिशन। ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी तो पॉल्यूटेंट है खुद में ही, जो औशिक बोल रहे डेफिनेशन। क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए, कम में मतलब कि वो तो ठीक है, एक लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस इन नेचर। क्वालिटेटिवली जो होता है वो एक चाहे थोड़ा हो रिएक्शन चाहे करके बना, ज्यादा हो, वो जो है। रिएक्शन करके प्रॉपर्टी बना है, मैन मेड बना है ओवरऑल जो अलग से, तो डीटी, क्वालिटेटिवली डीडीटी और डीटी, हर्बिसाइड हाँ नेचुरली नहीं डीडीटी है, और ऑन द बेसिस ऑफ द तो एग्जिस्टेंस इन नेचर। डीडीटी कार्बन। फिर तो अरे सर, डीडीटी मानसी, भी जितना क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी कम में करेंगे नहीं तो उतना ऐसा नहीं है। पॉल्यूटेंट होगा। Quantitative and qualitative here means, qualitative means that by quality, even if the quantity is very low, it will be pollutant. अब आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो हर नेचुरल भी तो नहीं है सेकंड, ना सर, नेचुरल भी नहीं है। क्या पॉल्यूटेंट है जो अच्छा, आप छोड़ रहे हो? वो पॉल्यूटेंट नहीं है, वो उसका एक लिमिट के बाद पॉल्यूटेंट है वो। लेकिन डीडीटी तो कितना भी है वो पॉल्यूटेंट ही है। और हर्बिसाइड, हर्बिसाइड भी उस तरीके से मतलब जो है पॉल्यूटेंट है, जब तक अगर लॉजिक लगाया जाए तो। करो ना, Yes, sir. DDT and herbicide is correct. चलो आगे, एंड बी मोर क्विकर, करो ना। जी क्वेश्चन सर. नंबर 19, आंचल एंड प्रवेश। आंचल स्टेटमेंट 1, प्रवेश स्टेटमेंट 2। The statement true is correct. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। जी. एक्सरे मशीन्स एट एयरपोर्ट इज अ सोर्स ऑफ रेडियोएक्टिव पोल्यूशन। तो फॉल्स होना चाहिए। गजब हो जाएगा ये तो, वैसे अगर ऐसा है तो। हाँ, फॉल्स होना चाहिए सर। आई विल गो विद डी, नीदर वन नॉर टू। Sir, both are correct. ओ, हो गया सर, गजब. गजब ही है ये। अगर एक्सरे सोर्स लिखा हुआ मशीन है कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन लिखा हुआ है, निकलता ही होगा ना सर, मतलब कुछ तो तो होगा. होता तो है, मतलब फिर सोर्स तो है ही। होना चाहिए, क्योंकि हजार्ड को आप नहीं, वो तो 24 घंटे सीएसएफ वाला तो साथ ही बैठा रहता है, या कहीं पर भी अगर ऐसा है तो इट इज बिजार सिचुएशन, वेरी सैड। Sir, I request Osik to not write on chat because answers डू before. डोंट लुक इनटू इट, Okay, sir. वी हैव टू लर्न टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड। और अच्छी बात है ना, लर्न को अनलर्न करना है, अनलर्न को लर्न करना है। वो जब मैंने बोला है तो वो लिख रहा है। मुझे मल्टीटास्किंग या तेज तो करना ही है। क्वेश्चन नंबर 20, मानसी, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड Reference to स्टेटमेंट, production, gross primary productivity of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis. Primary productivity. So true, it is true. सेकंड स्टेटमेंट आंचल, थर्ड स्टेटमेंट प्रवेश। The second and fourth. सेकंड इज फॉल्स, Third is correct, sir. third is correct. The contribution of oceans to net primary productivity of biosphere is more than 50%.
Karuna, can you please confirm? So only first and second are correct, third is not correct. हाँ वही ना, ओशियन का कंट्रीब्यूशन तो कम होना चाहिए. देयर कंट्रीब्यूशन शुड बी लेस बिकॉज उतनी डाइवर्सिटी नहीं है. और सर सर Yes, 50% लिखा हुआ ना यहाँ पर, उससे कम ही नहीं ज्यादा है. होगा, ज़्यादा है बहुत. हाँ, ये यूपीएससी में ये नहीं आया, लेकिन कुछ और आ चुका है डायरेक्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21. पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इज ऑफन इन न्यूज. दिव्या एंड सचिन. मार दे दिव्या, बता दे. यस दिव्या. तो बी या डी में से, हाँ बी या फिर डी में से लगाएंगे सर. अरे यार, बी बी कैसे हो सकता है? ये यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन से कैसे हो सकती है? और वर्ल्ड बैंक की कैसे हो सकती है ये ऑर्गेनाइजेशन? तो सी होना चाहिए. बी होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 22. E में जो नेम है that is PETA, that is People for Ethical Treatment of Animals. हाँ तो सी तो है ये. हाँ सर, पेटा तो फेमस है, न्यूज़ में आता है. क्वेश्चन नंबर 22. करुणा एंड मानसी. These plants were introduced in India for their lovely flowers that have caused havoc by their excessive growth by causing blocks in our waterways. So they are also called terror of the Bengal. They grow abundantly in the eutrophic water bodies and lead to an imbalance in the ecosystem dynamics of the water body. The following plants. So सब बंगाल में तो ए हो सकता है, I ये think. होना चाहिए water hyacinth. Hyacinth. ये होना चाहिए. चलो ए ठीक है है. सर, ए ए है सर उसका. ए होना वाटर चाहिए. आई कैन. क्वेश्चन नंबर 23. प्रवेश फर्स्ट स्टेटमेंट. ट्रू सर. ट्रू. एनिमल डाइवर्सिटी इन डेजर्ट इज वेरी हाई. मानसी. False, कम होती है. प्लांट्स हैव waxy surfaces to reduce water loss. करुणा. So correct. करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 24. प्रवेश. सर 1 हाँ 3. साथ में बता दे भाई. सर साल भी प्रोजेक्ट बता. टाइगर 1973, एलिफेंट 1992 और सर क्रोकोडाइल का 2000 में है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा. करुणा. So crocodile का है 1975 में. और एलिफेंट. So elephant 1992 and Project Tiger 1973. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 25. औशिक. गुड प्रवेश. सर कैफीन भी है, निकोटिन भी है, क्विनिन भी है, और 1 2 3 4 होना चाहिए. सर मेरा भी डी आंसर है. All ठीक होना है. चाहिए. करुणा भाई देखो ऐसा है, Yes sir, all are सबको correct. जल्दी से अपने आंसर तो निकालने ही चाहिए. कौन क्या बोल रहा है क्या हो रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं. अपना गोला लगना चाहिए. लगाते चलो, समझते चलो, देखते चलो. ऑटोनॉमस बनो. यही जल्दी एक्सरसाइज करने का फायदा है. क्वेश्चन नंबर 26. फर्स्ट स्टेटमेंट मानसी. सेकंड स्टेटमेंट प्रवेश. Air pollution, sir. Electrostatic precipitator is used to remove particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant. Electrostatic precipitator. True. स्क्रबर कैन रिमूव गैसेस लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. औशिक. सर SO2 है वो, सेकंड रॉन्ग है. SO2 होना चाहिए. हम्म. Platinum palladium is used in catalytic converters in automobiles for reducing emission of poisonous gases. Mansi. True, sir. पता है पैलेटिनियम पैलेडियम होता क्या है? No. पूछो ना. कैटलिस्ट बता है भाई सर प्रवेश. वो, Sir. कैटलिस्ट है हाँ वो. एटलीस्ट. रिएक्शन बढ़ाता है या घटाता है, डिपेंड करता है कैसा है, लेकिन वो रिएक्शन बढ़ाता हो यहाँ पर, वो ट्रैप करता हूँ बाकी जो चलिए इम्पोर्टेंट केस. नेक्स्ट. नेक्स्ट. पोइकिलोथर्म्स. औशिक.
ये तो गेस कर रहे सर रिमेन्स कांस्टेंट, ये नहीं हो सकता पहला वाला। वाइड इन नेचुरल, बी नहीं होगा। नैरो रेंज ऑफ लैटिट्यूड, दे और इंटरनेट वेरीज कंसिडरेबली, सी मारेंगे सर। सर आई विल गो विद डी। थर्म्स है तो टेम्परेचर तो होगा ही, तो ए या डी में से होना चाहिए डी है क्योंकि सर। थर्म्स एंड में है तो। करुणा, आंसर इज D1 एंड इसमें हम इस ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ले सकते हैं फ्रॉग। भाई लेकिन ये जो है ना, मुझे एक बात समझ नहीं आई, सी कैसे मार सकते हैं? एनिमल को क्या पता लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ जाना है? एनिमल को कब से लैटिट्यूड समझ में आने लगा? नहीं लैटिट्यूड सर, तो हम लिखा लोग हुआ रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है ना कि लैटिट्यूड ऊपर से नीचे होगा, कि इक्वेटोरियल जोन नहीं मिलता होगा सिर्फ ये एनिमल और जोन कंटिन्यू। और लैटिट्यूड में बड़ा फर्क है। लैटिट्यूड तो बहुत स्पेसिफिक होता है, जोन तो फिर भी बहुत बड़ा है। सर नहीं, डेफिनेशन जो मानसी ने बोला ना सर थर्म, तो थर्म थर्म टेम्परेचर। वो तो है ही। मैं तो लैटिट्यूड बोल रहा हूँ, मैं तो लैटिट्यूड बोल रहा हूँ कि लैटिट्यूड तो हमारा बनाया हुआ है। एक जानवर को कब से पता लग गया कि इसी लैटिट्यूड के अंदर रहना है? दे आर रिस्ट्रिक्टेड, हाँ मतलब तो कि जो आर्टिफिशियल से दे आर रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कि जो बोल रहे हैं, जो बना है थ्योरी, तो मुझे वो बोल पता रहे हैं मैं कि क्या इसके बोल, बीच में मिलते हैं। हो सकता है, इसलिए मैं जबरदस्ती मान रहा हूँ। ने सही बोला कि वो लैटिट्यूड्स तो आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है, एनिमल्स को उससे क्या लेना एट्टी देना। थ्री पॉइंट फाइव डिग्री आप लैटिट्यूड बोलते हो, तो लैटिट्यूड में कैसे बोल दोगे? ये कोई स्टेटमेंट ही गड़बड़ है उस तरीके से। नैरो रेंज, जो भी रेंज बोल रहा है लैटिट्यूड का, लैटिट्यूड तो खुद ही एक वो है, जोन। उसको नैरो कैसे बोल दिया उसने? स्टेटमेंट इज फॉल्स। हम्म। तो डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, दिव्या। प्रवेश। सर आई विल गो विद बी। डी। बी सर, बी। चलो ए। हाँ सभी ने डी बोला है। ए ए। सर। अच्छा, आंचल भी डी बोल रही है। करुणा? सो द आंसर इज C। ये है भाई, बहुत बढ़िया। There every day you are doing newspapers and everything, and still now this was something not required. अच्छा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, मानसी। फर्स्ट स्टेटमेंट, मतलब फर्स्ट क्या नॉट करेक्ट बता दो। which eutrophication is not correct. So it refers to the process by which a body of water becomes progressively enriched with minerals and nutrients. True, sir. चलिए औशिक बताइए 29 के जल्दी। सर पहला वाला सही है। सेकंड में दूसरा भी सही है। द increase in density of animal population by restricting the growth of plants in the aquatic, increase in the density of the animal population while restricting the growth of the plant, तो ये गलत तो होना चाहिए सर बी वाला, हाँ जी क्योंकि सी सही है। सी सही है, लॉस ऑफ कोरल रीफ, एंड डी जो है इट detritus layer डेट इज भी लेयर बन true सकता है सिर्फ से, तो शायद सर बी होना चाहिए। hint, हाँ जी। चलिए करुणा। सर आंसर इज B। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, प्रवेश। उसके बाद औशिक। सर 1 एंड 2 हो सकता है। नहीं सर, 1 एंड 2 तो ऑप्शन में नहीं है सर, तो 1 ओनली सर, सी। सर मैं तो तीनों मारूंगा, I'll go with C, only 1 2 one. 3 पूरा। सो ऑल आर करेक्ट। हम्म, देखो। सर वो बता दें उचित कि एक बार कैसे आपने किया। नहीं पता, मैंने फिर देखा कि वो जो पॉल्यूशन है केमिकल है, और फिर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है तीनों का। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ एक स्पेसिफिक दिया हुआ है ना, स्पेसिफिसिटी बढ़ गया है इसमें, कि डिफॉर्मिटी इन बैकबोन्स ऑफ द फिशेस किल्स हनी बी, तो ये गेस था। पर अच्छा है, इट्स अ गुड फैक्ट, मतलब हम्म। ठीक है।
Question number 31. Mansi, be quick. And The then we state can start shrimp part papa. 2.